Yes, yes, sir. I am trying to make my first day of the new Surrender. year, you know, a little adventurous. What are you saying, sir? Someone calling me, so I didn't hear you properly. I'm just trying to be a little adventurous. I'm eating guavas at night. I I also want to eat, but I love guava very much, sir. Mm. I love fruit. Yes, sir. One of Guava, my favorite. mangoes, bananas, I apple. don't like I don't like apple most, but guava is one of my favorite fruits, sir. Mm. Last day of the year, guys. Good evening, Yes. sir. If you want to Good make it evening, sir. memorable, good evening, What Anshu. What's your planning for tomorrow, sir? To stay in bed and watch something interesting on TV. What do you want to watch? Somebody told me there is a movie called Lucky Bhaskar. And which type of movie? That one? I don't know, but I don't like watching action films. I like watching films based on true stories, real stories. Truth story, sir. Come again. Truth story, sir. I watched. Um, you're asking That me, is a real story. That is the real story. Real story. Yeah. it is based on a real story, on some scam, right? Yes, sir. Scam. Hmm. Rukhsar. Noor And is in Hello, the dark. sir. sir, Good evening, sir. How are you? sir, other than watching movie, what do you want to do tomorrow? Besides watching TV, watching movies, I'll play chess. I'll talk to my wife. She will be at home. Maybe we'll If, cook something. sir, if you want to play Ludo tomorrow, Oh, yeah. then I want to play with you. Actually, we played Ludo once, twice. 2 days I played Ludo. First day, it was just me and Saloni, I think. There's just the two, right, Saloni? Only Sir, you and me. sir, whenever you want to play, please text me on WhatsApp or I'll send you anything. an invite. Yeah, yeah, sir. Saloni will have to accept it was Allison who helped you win the second match because she was playing differently. She was not making the right choices. She was not making logical decisions there, logical moves. So we are ready now. Sir, we have to discuss about Will, the story of. Don't say discuss about, say we need to discuss something. We Not need to discuss discuss. about. Okay, sir. We need to discuss something related to Bill Cole. Mhm. Okay, guys, what do you remember about Bill's life? Tell me. Start from his childhood, his family. Mm, Bill was born in Bill was born in London London. hmm, where? London. When? in 1951. Bill Cole was born in London in 1951, and he had two brothers and one sister. Uh,
His father was a butcher and his mother was a housewife. They lived in a small town, a small old house in Deptford, that is a part of London. Hmm. And Bill went to school in New Cross, Hmm. but left at 16 without passing any exam. Morning, sir. And he worked. He worked various job and then joined the army. And staying until he was 18. In in 1964, Bill married his wife, and they had three children. Later he studied maths at university and become a teacher, working in the profession for the rest of his life. Hmm. Okay, go on, people. Just give me one or two sentences about Bill's life, anything about his childhood. Anyone? No? You don't know about Bill's life? Bill Cole was born in London. That's right. Now, any new information, anybody else? Somebody else will tell me something more. Bill Cole was born in London, Adib said. You add something, please. They had not three children. They had two children. They who, Anshu? They had two children. Who? Apurva, they said na they had three children, not They who? three. They They who? had They who? They who? Bill Con. Bill Con. Bill Cole. He didn't Bill Con. pass any exam. He left the school when he was 16. Ganpat, well done. Any information? Tell me anything about Bill, other than what your friends are saying. And Bill Cole's father was a butcher. What does the butcher do? A butcher He, sells. he worked in a shop until he was 18. He worked in a shop until he was 18. After leaving the school, right? Yes, sir. नूर का ओवर कॉन्फिडेंस देख रहे हो दोस्तों? नूर का ओवर कॉन्फिडेंस देख रहे हो? उसका नाम है नूर। वो कह रहा है बस मेरा नाम नूर है, तो हम अंधेरे में भी रहेंगे तो नूर रहेगा। देख रहे हो अंधेरे में वो? अरे भाई ठीक है, तुम्हारा नाम नूर है, लेकिन रोशनी में आओ। There is no light, sir. ओ, नूर के जगह पे अंधेरा। ओके, बिजली विभाग इज चैलेंजिंग यू। तेरा नाम नूर है तो रोशनी फैला, हम नहीं देंगे रोशनी। ओके। खुशी, is it that important, Khushi? Tell him he can talk to you later. So what are we going to study in the practice book? Was the homework? Yes, sir, there was a homework. Yes. Let's see. पर्पस है तुम्हें पैटर्न एहसास कराना, पैटर्न का एहसास कराना। इस क्लास में तुम इंग्लिश कैसे काम करती है भाषा के तौर पे, उसमें क्या क्या पैटर्न है ये गौर करो, हिंदी समझ में आने लग जाएगी। Read the first line about the Soviet cosmonaut Yuri Gagarin. Read the first line about the Soviet cosmonaut Yuri Gagarin, the first man in space. Yuri Gagarin, comma, the first man in space. What does it mean?
we are writing some extra information about Yuri Gagarin. Guys, read the first line. About whom? About the Soviet cosmonaut. What was his name? Yuri Gagarin. Yuri Gagarin. What is extra information about him? The first man in What is the First extra man. information about him? The first man in space. No, don't say that. Don't say that. What is the extra information about him? He was, Yuri Gagarin was the first man in space. yes. Who was Yuri Gagarin? He was a Soviet cosmonaut. He was a Soviet He was a Soviet cosmonaut. Soviet word is used as an adjective, just like American, Chinese, Indian. Similarly, anything related to the Soviet Union was called Soviet. So he was a Soviet cosmonaut. It means he was a cosmonaut, and he belonged to the Soviet Union of Russia. He belonged to the Soviet Union of Russia. So, Soviet cosmonaut. A cosmonaut is another word for an astronaut. Cosmonaut is another word for an astronaut. Cosmonaut. So, as an astronaut, cosmonaut. Read the first line about the Soviet cosmonaut Yuri Gagarin. He was the first man in space. Write the second line using the prompt. फिर से पढ़िएगा. Read the first line about the Soviet cosmonaut Yuri Gagarin, the first man in space. Who was the first man in space? Yuri Gagarin. Yuri Gagarin was the first man in space. Gagarin was born in the village of Klushino. Where was Gagarin born? Born in the village of He Polishino. was born He was born in the village of Vishnu. In the village of Klushino. क्या पता चला आपको? He didn't Polishino is a city. he didn't born in city. Didn't born in city. Everybody पे हाँ क्लूशिनो के विलेज में पैदा हुआ था. कहाँ पैदा हुआ था? Village of Polishino. हिंदी में बोलना. हिंदी में बोलो. कुलसीनो के गांव में कहाँ पैदा हुआ था? कुलसीनो के गांव. क्लूशिनो के गांव में. है ना दोस्तों? यस सर. खुशी बताओ बेटा, कहाँ पैदा हुआ था गगारिन? गगारिन was born in the village of Klushino. Polishino के गांव में. क्लूशिनो के गांव में. तो क्लूशिनो के बारे में क्या पता चला? It's a big city. कुलसीनो इज सब लोग कर लिए अपना दिमाग? मुझे जाने तो रेनू के पास. मुझे रेनू के पास जाना है. रेनू. गगारिन was born in the village of Klushino. हिंदी में बोलिए. कुलिसिनो के गांव में पैदा हुए थे यूरी गगारिन. और कोई मुझे निराश कर सकता है? और अदीब हिंदी. Sir, it's the name of village. कुलसीनो एक विलेज है, उसी में यूरी गैगरिन पैदा हुआ था. चलो, खुशी और अदीब, वेल डन बोथ ऑफ यू. चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपने एलिमेंट्री कोर्स के. बाबर अली. Yeah, I remind this class today. हाँ, बाबर अली. देखिए भाई क्या लिखा था? ही वॉज बोर्न इन द स्मॉल विलेज ऑफ भावटा. क्या सिखाया था मैंने? भावटा के गांव में. भावटा इट्स अ विलेज. तुमको किसी दिन हम इतना पीटेंगे तो 4 लड़का मिल करके पीटेंगे तुमको. क्या बोला था? क्लूशिनो के गांव में.
अभी यही सबसे पहला तू बोला था, कुलुशिनो के गांव में। village में गाँव। हाँ हाँ हाँ, वही तो हम भी बोल रहे हैं, कुलुशिनो के गांव में। कुलुशिनो डिस्ट्रिक्ट है। पढ़ो इसको, सब लोग पढ़े थे ना ये। रेनू, यू डिसअपॉइंटेड मी टुडे। I didn't, sir, taught this lesson. You were I'm not not here. that You time. were not No, here. I was not. Okay. No, sir. In the small village of भावटा, भावटा ही वो छोटा सा गांव है जिसमें वो रहता है, भावटा। इन द स्मॉल विलेज ऑफ भावटा मतलब भावटा नाम के छोटे से गांव में। भावटा नाम के छोटे से गांव में। After me. और आपको ये क्या पता चला? ही वॉज बोर्न इन द विलेज ऑफ क्लुशिनो। अब क्या पता चला? कुलसीनो कुलुशिनो नाम के गांव में। क्लुशिनो नाम के गांव गांव। में। गाँव में क्लुशिनो नाम के गांव में। खुशी कैसे याद आया ये? There was like a sentence city and country state हम्म, वाला आप कुछ पढ़ा रहे थे। कमेंट में। Yeah, exactly. वो गलत लिखा तो वैसे, इसी ने लिखा था, इसी लड़के ने जो मेरे बगल में बैठा। गगारिन वॉज बोर्न इन द विलेज ऑफ क्लुशिनो। गाइस, क्लुशिनो नाम के गांव में पैदा हुआ था वो। इन द विलेज ऑफ क्लुशिनो मीन्स क्लुशिनो नाम के गांव में, क्लुशिनो के गांव में नहीं, क्लुशिनो नाम के गांव में। He was born in the village of Clushino. Any problems, anyone? हम लोग को क्लुशिनो का भी पता होता कि गांव है, शहर है, कहाँ है, क्या है, पता चलता नहीं ना। अगर वहां लिखा होता he was born in Clushino, he was born in Clushino, तो हमें पता चलता कि क्लुशिनो शहर है, गांव है, क्या है, देहात है, डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, नहीं पता चलता। बताने के लिए he was born in the village of Clushino। लेकिन यूरी गगारिन रशियन है, तो रशिया के लोग जानते होंगे क्लुशिनो को, तो वो शायद ना भी बोले, सीधे बोले यूरी गगारिन वाज बोर्न इन क्लुशिनो। मैं आपसे पूछता हूं बेटा, वेयर इज द ताजमहल? वेयर इज द ताजमहल? इट इज इन आगरा। इट इज इन आगरा। City of Agra. आगरा। इट इज इन आगरा। इजी है हम लोग के लिए, कोई दिक्कत नहीं, वी ऑल नो आगरा। ओके। लेकिन अगर रशिया में किसी से पूछा टीचर ने, वेयर इज द ताजमहल in a Russian in the country, okay, in Russia, in a class, general knowledge, people ask questions. For example, here we ask, where is the Eiffel Tower? In Paris. It is in Paris. Right. तो आप कैसे जवाब दोगे? आप सीधे बोल देते हो इन पेरिस, ठीक है। अब पेरिस शहर है, पेरिस डिस्ट्रिक्ट है, पेरिस गांव है, क्या पता चला? पेरिस देश है, नहीं पता चलता कई लोगों को, खाली याद कर लेते हैं पेरिस में। रट्टू तोते स्कूल में होते, ओके। तो यहां नहीं बनना, प्लीज ट्राई। वेयर इज द आईफिल टावर गाइस? Country of Paris. ना कुछ, that's where you're wrong. Ah, there was City of different actually. I will tell you. It is in the French city of Paris. अब क्या समझ में आया? It is in the French city of Paris. It is in the French city of Paris. अब बताओ क्या समझ में आया दोस्तों? फ्रेंच में। फ्रेंच की सिटी। फ्रेंच। फ्रेंच सिटी। फिर से पूछता हूँ, where is the Eiffel Tower? It is in the City French in the it is French city of It Paris. is It is in the French city of Paris. It is in इसका हिंदी निकालो। पेरिस नाम के, जो पेरिस है वो Paris में। पेरिस नाम के Yes. फ्रांसीसी शहर में, नाम के फ्रांस। फ्रांसीसी शहर, फ्रेंच सिटी, यानी पेरिस कहाँ है दोस्तों? इट इज इन फ्रांस, तभी तो ये फ्रांसीसी शहर है। चलो बताओ, वेयर इज Paris is a city? पेरिस? इज अ सिटी, यस। Okay. तो इस सेंटेंस से पता चल गया ना, बिकॉज आई सेड, और खाली शहर है ये नहीं पता चला, कहाँ है ये शहर?
France. In France. In France. Because I said the Eiffel Tower is in the French city of Paris. तो रशिया में कहीं बात हो रही हो, अमेरिका में कहीं बात हो रही हो, किसी स्कूल में टीचर ने पूछा वेयर इज द ताजमहल, Indian city of Jaipur. इंडिया आगरा। ये Indian नया city of नया ताजमहल Agra. कहाँ बना भाई? It is in the Sorry, Indian I city was of Agra. Agra. इट इज इन द इंडियन सिटी ऑफ आगरा। वो लोग बोलेंगे, Agra. आगरा। अगर वो खाली आगरा बोलेंगे तो उनको पता नहीं चलेगा आगरा क्या है क्या नहीं है, राइट? बस आगरा बोल के रट्टा मार सकते वो, जैसे आप लोग पेरिस बोलते थे, सारे लोग बता देते मुझे, मैं पूछता कहाँ है, वेयर इज द आईफिल टावर, पेरिस पेरिस पेरिस। पेरिस क्या है किसी को नहीं पता, कोई कहता देश है, कोई कहता राज्य है, राइट? तो थोड़ा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ले लो। द आईफिल टावर इज इन द फ्रेंच सिटी ऑफ पेरिस। चलो अब दूसरा सवाल। वेयर इज बुर्ज खलीफा? बुर्ज खलीफा is in दुबई। Dubai. It is अब सुनो मेरी बात, दुबई बहुत It फेमस है, is आप the डायरेक्ट बोल दो इट UAE इज इन दुबई। city of Dubai. इज दुबई अ सिटी? Yes, the UAE city. राइट, इट इज इन द सिटी ऑफ दुबई, इट इज इन द, City of Dubai. क्या पता चला दुबई नाम के शहर में है, तो ये बोलने से ये भी जानकारी मिल गई कि दुबई एक शहर है। अगर आप लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लोगे तो बाद में जो रिवीजन होगा उसका वैल्यू बढ़ जाएगा। ओके, लेट्स सी। सो वेयर वाज Gagarin born? He was born in the village of Pulsino. He was born in the village of Clushino. Yes. He did not grow up in a town. He did not grow up in a Town. He grew up in a village. He did not grow up in a town. Did not grow up, समझ रहे हैं सब लोग? Past tense, past की बात। He did not grow up in a town. Ravi, why is your camera off? Ravi, I can't see you. Ravi, turn your camera on, Ravi. रवि यहां ध्यान दीजिए, ये डिडंट ग्रो क्यों लिखा? I can't hear you, Ravi. It's a past, that's why. चलो बहुत बढ़िया जवाब। मैं कहता हूं पास्ट में तो wasn't भी तो यूज होता है, मैं wasn't grow बोलूंगा। अब तो सही है? पास्ट में wasn't भी यूज होता है, हाँ या ना रवि? हाँ होता है। तो मैं wasn't grow क्यों ना बोलूं? Because sir, it's not talking about self. He's talking to another person. बकवास जवाब, कहां से सीखी ऐसी बकवास जवाब? बोलो विनय सर से, विनय सर क्लास में। छोड़ दो ऐसे बकवास टीचर को। Anybody else will answer this? Didn't grow, उसने कहा past tense. I agree, past tense सही है। past में तो wasn't भी बोलते हैं, फिर wasn't grow क्यों नहीं बोल रहा है? सर ही में डज लगता Because है here is a तो verb. पास्ट डिडंट होगा। बहुत बढ़िया। But was and grow both are verb na sir. Was is be verb and after we verb we use Never use we fourth verb. form of verb. Exactly. Yes, sir. Very good Yes, sir. answer अपूर्वा, very good answer. अगर ऐसा आंसर सब लोग दें तो I will be so happy, so proud. मुझे ठीक से पता नहीं चल रहा कि Alexa, इसकी stop. मदद कैसे की जाए। Alexa, stop. Okay.
Suddenly, Alexa got in the, excited and started speaking in the middle. I don't know. Okay, guys, understand. Sare log, Anish, Ganpat, everybody pay attention. Mahfouz, Aisha, didn't grow past tense है. Wasn't grow भी past tense हो सकता था, लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है? Wasn't मतलब be verb, और be verb के बाद grow verb कैसे आ सकता है? क्यों? इंग्लिश में कभी भी be verb के बाद V1, V2, V5 नहीं आ सकते. सुना तुमने? बी वर्ब के बाद दोस्तों ध्यान दो और हमेशा के लिए दिमाग में बैठा लो. बी वर्ब के बाद कभी भी नहीं आ सकता क्या? V1 नहीं आ सकता, V2 नहीं आ सकता और V5 नहीं आ सकता. और यही तीनों कहाँ यूज होते हैं? सिंपल टेंस में, राइट? सिंपल टेंस में प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल. याद आया? V1, V2, V5 यूज होता है. यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस में बी वर्ब नहीं यूज होगा. जैसे आप बोलोगे आई गो, आई एम गो बोल सकते हो? आई एम गो, नो. तो आई एम नॉट गो भी नहीं बोल सकते, और आई एम नॉट गो नहीं बोल सकते तो आई वॉजंट गो भी नहीं बोल सकते. आई वॉजंट गो नहीं बोल सकते तो आई वॉजंट ईट नहीं बोल सकते. आई वॉजंट ईट नहीं बोल सकते तो आई वॉजंट स्लीप भी नहीं बोल सकते. आई वॉजंट स्लीप नहीं बोल सकते तो आई वॉजंट ग्रो भी नहीं बोल सकते. हो गया जवाब. लो, एक कदम छोटा छोटा लिया, पहुंच गए मंजिल तक. रवि, समझ में आया? यस सर. क्या जवाब दो, समझाओ. ग्रो के क्यों लिखा हुआ है? समझा दो. क्योंकि बाज वॉज हम सेकंड फॉर्म हो जाता है V1 का. किसका? इज एंड V1 का सेकंड फॉर्म वाज होता है पास्ट में. तो अगर हम ही से इट या नेम यूज करेंगे तो सेकंड फॉर्म यूज नहीं करेंगे. क्या बकवास बात हो रही है भाई? तो हम ही वॉजंट नहीं बोल सकते, ही वॉजंट हैप्पी नहीं बोल सकते. ही वॉजंट हैप्पी नहीं बोल सकते रवि बाबू. हम लोग बोल सकते कि नहीं बोल सकते रवि बाबू? बात किल मत, कम्युनिकेशन को किल मत करिए, बात करते रहिए तभी समझ में आएगी, क्योंकि आप ही को समझाने के लिए इतना कर रहे हैं हम. ठीक है, पेमेंट पहुंचवा दीजिएगा. ठीक है बाबू साहब. हाँ, आप ही के लिए स्पेशल है ये. देखिए मैं फिर से बताता हूं, आप डिडंट पे मत रहिए, डिडंट के बाद वाले वर्ड पे ध्यान दीजिए. ग्रो, ये कौन सा वर्ड है? V1 है. ये क्या है? V1. ये वजह है, इसकी वजह ये है कि हाँ वॉजंट नहीं यूज हो सकता. ये क्योंकि बी के बाद V1 नहीं हो सकता, V2 नहीं हो सकता, V5 नहीं हो सकता. तो अगर आप वॉजंट बोलोगे तो ग्रो कैसे बोल सकते हो? नहीं बोल पाओगे, गलत हो जाएगा. और सुनो, एक और तरीका बताता हूँ, एक और तरीका बताता हूँ जो कल बोला था मैंने सब लोगों को. फिर से सर कैन वी, सर हाँ बोलना बेटा. कैन वी यूज V3 आफ्टर V1? हाँ होता है बेटा, बिल्कुल होता है. देखो, ये देखना सारे लोग देखो, V2 को 2 टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है दोस्तों. कौन है वो 2 टुकड़े? did plus V1. बस तोड़ो इसको 2 टुकड़ों में. Did plus win. तो जब अगर आपको ये नहीं चाहिए, 1 नहीं चाहिए, तो ये चाहिए होगा. मेरा लेकर सो गया होंगे जो अंकल को दिया था होने के लिए. क्या लग रहा है? ठीक है, अब आप समझ गए कि यहाँ वॉज क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि जब किसी V2 को तोड़ते हैं तो किस में टूटता है वो? did plus Did plus V1. अब क्वेश्चन करना है तो यही अलग अलग हिस्से रख दो. बोलो, क्या उसने तुम्हें पैसे दिए? बोलो, क्या उसने तुम्हें पैसे दिए? रवि, ध्यान नहीं दे रहे हो रवि? बोलो, कैसे बोलेंगे? उसने तुम्हें पैसे दिए? No, he didn't.
उसने तुम्हें पैसे दिए? No, he didn't give. अरे मैं कहाँ बोल रहा हूँ उसने नहीं दिए, मैं तो पूछ रहा हूँ उसने पैसे दिए, पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन ने सेंड यूज करा। डिड ही गिव यू द मनी, डिड ही सेंड यू द मनी? चलो ठीक है, देखो हाँ ये देखो। Did he give you the money? ओके, और ले लो भाई। स्लेप्ट, स्लेप्ट को तोड़ो 2 टुकड़ों में। स्लेप्ट को 2 टुकड़ों में तोड़ो भाई। Did plus sleep. Did plus sleep. Plus sleep. इसमें वॉज आ ही नहीं रहा दोस्तों, आ रहा है क्या? इसीलिए वॉज नहीं आता। वॉजन क्यों नहीं आया? क्योंकि किसी वर्ब को हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आप ना ऐसे समझा करो कि किसी V2 को जब तोड़ेंगे तो वो डिड और V1 में टूटेगा, ओके? और इस वजह से आपको वॉज नहीं बोलना है वहां, और कोई वजह नहीं है, क्योंकि वो कौन से 2 टुकड़ों में टूटता है? डिड प्लस V1, ना कि वॉज प्लस V1 में। V2 किस में टूटता है दोस्तों? Did plus V1. हाँ, और जब क्वेश्चन करोगे तो क्या करोगे? ये डिड को सब्जेक्ट के पहले रख लोगे, और ये जो दूसरा हिस्सा सब्जेक्ट के बाद, दोनों तरफ से सब्जेक्ट को पकड़ लेता है ना, दोनों वर्ब मिल करके। Yes, sir. पहले सब्जेक्ट के बाद। चले, तो इस हिसाब से रवि क्या जवाब इसका है? सीधा सीधा सर, पास्ट टेंस में ग्रू होता है ना V2, उसको जब तोड़ते हैं 2 हिस्सों में तो डिड और ग्रो में टूटेगा, तो नेगेटिव करना था तो नेगेटिव नॉट लगा दिया डिड में, है ना? बी पर का सवाल ही पैदा नहीं होता यहाँ पे। क्लियर है एक्सप्लेनेशन? जहां जहां V2 यूज होता है, अगर V2 ना यूज करें तो क्या यूज करेंगे दोस्तों? डिड और V1 Plus V1. राइट। थोड़ा सा मैं आपसे हेल्प चाहूंगा पूर्वा, मुझे पता है कि आप बेहतर एक्सप्लेन कर पाएंगी घरेलू माहौल बना करके, ठीक है? कर लेंगी, थोड़ा सा हेल्प कर देंगी हमारी? Yes, sir. ठीक है, इसके चार्जेस मैं आपसे रवि से लेकर के आपको दे दूंगा, ठीक है? कोई टेंशन नहीं है, ओके? यू विल नॉट हैव टू वर्क फॉर फ्री अपूर्वा, वो मेरे को एक्स्ट्रा पे करेगा, इसके लिए मैं आपको पे करूंगा, ओके? से थैंक यू सर, मुझे आपने एम्प्लॉयमेंट दिया, मैं अनएम्प्लॉयड थी। कम ऑन अपूर्वा, Thank you, sir. But मैं I don't. अनएम्प्लॉयमेंट हटा दूंगा इस दुनिया से, मतलब भारत से, इस तरह से, ओके? दिस इज माय पर्पस। हिज पेरेंट्स वर वेरी पुअर, हिज पेरेंट्स वर वेरी पुअर। आओ भाई, They didn't उनके पास have. पैसे नहीं थे। They didn't. Have much money. तभी They भी didn't देखो, have much money. हैव They बीवर didn't have पास्ट की बात कर रहे हैं, much money. तो कैसे, कौन सा वर्ड के जरूरत है? डिडंट के जरूरत है ना, डिड नॉट हैव मच मनी, दे डिड नॉट हैव मच मनी। एवरीबॉडी इज विद मी हियर Don't have much money. ऑन दिस? रेनू, एनी कंफ्यूजन? No, sir. कुछ शबनम, डू यू हैव एनी कंफ्यूजन शबनम? नो सर। तो फिर बताओ यहाँ क्या बोलना चाहिए? हिज पेरेंट्स वर वेरी पुअर, दे पेरेंट्स वर वेरी पुअर, दे डिडंट हैव मच मनी। चलो मैं एक चेंज करता हूँ, एक ऐसी हाइपोथेटिकल सेंटेंस देता हूँ, वर्ड को आर कर दो। देयर पेरेंट्स आर वेरी पुअर, अगला लाइन बोलो। They don't have much. They don't have much. their parents Have much are money. not poor. His They parents are very poor, they Don't. don't have much money, right everybody? अब वो did not नहीं बोल के क्या बोलेंगे? Don't. Don't. They don't have much money. His parents were very poor, they did not have much money, उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। वर्ब क्या है इस सेंटेंस में? Have. यहाँ वर्ब क्या है दोस्तों? ग्रो अप। With we grown. आगे आओ, नंबर 3, they worked on a collective farm, they worked on Collective form.
They worked on a collective farm. अपने जमीन पे नहीं, उनका जमीन था ही नहीं खुद का. नहीं, They they didn't They did not own own any they didn't own any land. They did not own any land. They did not yes own any land. हम्म, इस सेंटेंस में वर्ब बताइए सब लोग. जी Own शबनम own वर्ब बताइए. land They did not own any land. वर्ब क्या है? मुझे पता है कंफ्यूजन होगा, पता है मुझे 100%. on सर on ओन मतलब अपना वो कौन सा काम होता है? अपना कौन सा काम है? वर्ब भी बोल रही है और अपना भी बोल रही है. नहीं जैसे सर अपना काम नहीं रन मतलब दौड़ना होता है, तो ईट मतलब एनी खाना लैंड होता है, तो ऑन मतलब कौन सा काम हुआ भाई? नहीं सर ऑन भी वर्क नहीं हो तो एनी में भी तो कोई होता तो ये कैसे हो जाएगा यही तो मैं और कह रहा लैंड था कि नॉन आप है वो तो दे दी ओन वर्ब है, लेकिन आप समझ नहीं पाए इसको. देखो दोस्त, यस जब मैं ऐसे पूछता हूँ ना कि क्या वर्ब है, तो मैं आपसे सिर्फ जवाब नहीं चाहता कि आप मुझे बोल दें ये फलाना वर्ब है. आप यस सर महसूस फीलिंग करें भी चाहिए जो वर्ब है. खुशी ओन ही वर्ब है, खुशी ओन ही वर्ब है. मैं समझाता हूँ. यस सर यहाँ पे ओन मतलब खरीदने के पर्पज से शायद यूज हुआ है ना. वेल ट्राइड. चलिए मैं बताता हूँ. Sir, I'm saying meaning of on हम्म. here. तुम मार खा जाओगे पक्का. पड़ोस में बैठ के ऐसे बोलोगे उल्टा पुल्टा, वो लोग तो इतना दूर है तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम घुस नहीं सकते हैं, लेकिन तुम पिटा जाओगे. डंडा लाओ जी. हम्म. हाँ, ओन वर्ब है. ओन का मतलब बताओ ना. ओन वर्ब है बोलने के बाद ओन समझोगे भी तो. अगर ओन मतलब अपना बोलेंगे हम लोग और बोलेंगे ओन वर्ब है और ओन मतलब खुद अपना, तो करना yes, हमारा दिमाग पागल हो रहा है, क्योंकि ओन कोई काम ही नहीं है. तो कैसे बोल सकते ओन वर्ब है? जब yes, वर्ब sir. बोल रहे हो तो वर्ब बताओ भी हिंदी में. मैं समझाता हूं. देखो. खरीदना आई सर, यस. सॉरी रेनू. खरीदना सर। नहीं नहीं, मैं बताता हूँ. गलत बजा रही थी, मैं बताता हूँ. देखो. आई हैव माई ओन हाउस. आई हैव माई ओन हाउस. इस सेंटेंस में वर्ब हैव है. yes sir have आगे सुनना. ओन वर्ब नहीं है. है दे लिव इन देयर ओन हाउस. अभी भी लिव वर्ब है, ओन वर्ब नहीं है. आप नहीं बोल, डू यू हैव योर ओन टूथब्रश? योर ओन टूथब्रश. तो ये जो ओन आता है, ये माई योर हिज के बाद आता है. और इसकी हिंदी आप बोल सकते हो अपना खुद का, एम्फेसाइज करने के लिए. ओके गाइस, एम्फेसाइज करने के लिए. डू यू हैव योर बेडरूम? डू यू हैव योर ओन बेडरूम? ओन जो है एम्फेसाइज करने के लिए आता है. पहले ओन का एक yes मीनिंग जानते हो सब. एवरीबॉडी नोज दिस. ओके, एवरीबॉडी नोज दिस. ओन. yes डू यू हैव योर ओन बॉयफ्रेंड्स गर्ल्स? या you're managing with somebody else's boyfriend? ठीक है, होता है ना. जब तक while you don't have your own, you manage with somebody else's. Okay, boys, do you have your own girlfriends or you are managing with somebody else's girlfriend? I don't know. own का ये जो यूज है, ये emphasize करने के लिए है. Alright, वो जो possession है ना, वो emphasize होता है. possession emphasize होता है, मेरा खुद का, मेरा अपना. ठीक है. हम पापा के घर में नहीं रहेंगे, हम अपना खुद का घर लेंगे. आई विल बाय माई ओन हाउस. माई ओन, योर ओन, हिज ओन, हर ओन. इस तरह से ये पजेसिव एडजेक्टिव के बाद आता है. इसका मतलब होता है खुद का. ओके, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद. ओके, अब बात करते हैं दूसरी. मुझे एक बताओ, जो डांस करे वो डांसर, जो टीच करे वो, टीचर जो सिंग करे, सिंगर और जो लर्न करे, लर्न और जो ओन करे. ऑनर. तो अगर आप ओनर हो तो, अगर आप सिंगर हो तो आप सिंग करते हो. अगर आप डांस, इफ यू आर अ डांसर यू डांस. इफ यू आर अ सिंगर यू सिंग. इफ यू आर अ लर्नर you learn. If you are a teacher you teach. And if you are an owner then you On. own. Okay, बात समझ में आ रही है? अब थोड़ा सा सुनो.
do you think a husband is the owner of his wife? Yes. Shabnam says yes. The husband is the Yes. owner of the wife. No, sir. Okay. How many people here think the husband is the owner of his wife? Raise your hand. देखो, No. सलोनी thinks the husband is the owner of Not his wife. thinking. आई होप कि तुमको ऐसा ही हस्बैंड मिले जो तुम्हें ओन करे। तो दोस्तों, सलोनी एंड शबनम थिंक दैट ए हस्बैंड इज द ओनर ऑफ हिज वाइफ। इसका मतलब ही ओन्स हिज वाइफ। ही Owns his ओन्स wife. हिज वाइफ। बिकॉज अभी मैंने कहा था डांसर डांस करेगा, सिंगर सिंग करता है, तो ओनर क्या करता है? ओन करता है। तो Own आपने करता है। कहा the husband is the owner of his wife, it means the husband owns his wife. Okay? तो एक वाइफ झगड़े में कहती है तुम हमारे मालिक नहीं हो, हस्बैंड हो। कैसे बोलेगी वो? You are not my You honor. don't You are own me. my. You are not You my are own. not. Yes, You are my yes, husband. खुशी, well done. Husband. तो दोस्तों देखो, आपको समझना होगा यू आर नॉट माई ओनर बहुत अच्छा था, लेकिन आप ये सीख रहे हो ओन, तो आप बोल सकते थे, वाइफ बोलेगी यू डोंट ओन मी, यू डोंट ओन Own मी, me. डोंट ओन मी। Don't. क्योंकि ओन वर्ब है ना, Own. वर्ब है ना, तो आप Yes, कैसे sir. बोलेंगे यू डोंट ओन मी? Don't own डोंट me. ओन मी, You don't यू आर माय own me. हस्बैंड, यू डोंट ओन मी। आप अपने बॉस को ये बात कैसे बोलेंगे? देखो, आप बॉस हो, मैं आपके लिए काम करता हूं, लेकिन आप मेरे मालिक नहीं हो। You don't. You don't own my You don't own me. You don't own me. I work for you, but you don't own me. You are my boss, but you don't own me. Own me. Yes, sir. You don't You don't own own me. me. You don't own me मतलब you are not my owner. My honor. Yes, sir. You don't own me. ठीक है? अच्छा, if a husband says or a boyfriend says, I own you. I own you. Okay? वो क्या कह रहा है? my तुम पे हक है। वो कह रहा है कि मैं तुम सिर्फ मेरी गुलाम हो, मैं तुम्हारा मालिक हूँ। आई ओन यू। ठीक है? आई ओन यू मतलब मैं जो चाहूंगा वही करोगे तुम, राइट? आई ओन यू। समझ गए ना इसका मतलब? आई ओन Yes, यू। sir. ऑलराइट। समटाइम्स व्हेन आई प्ले चेस, देन वी गेट इन अ सिचुएशन जहां सामने वाले का मूव हमारी वजह से होता है। हम जो कहेंगे वो मूव चलेगा वो, क्योंकि नहीं तो फंस जाएगा वो। ठीक है? फंसा हुआ ऑलरेडी होता है, लेकिन उसको बचने का वही रास्ता दिख रहा होता है कि इससे बचेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में जब हम किसी को पहुंचा देते हैं ना, जहां वो अपने हिसाब से नहीं चल सकता, बेचारा मजबूर हो जाता है, तो हम उसको कहते हैं आई ओन यू। रहने के लिए चेस में एक दूसरे को कमेंट करते हैं हम लोग, आई ओन यू, आई ओन यू। जब गाली गलौज भी हो रही होती है तो somebody owns someone, okay? You are my teacher, but you don't own me. आप टीचर हो, लेकिन आप मुझे ओन नहीं करते, मतलब आप मेरे ओनर नहीं हो, मालिक नहीं हो। Yes. He owns a 5-star hotel and 2 big factories. He owns a 5-star hotel and 2 big factories. मतलब he is the owner of 2 big factories and a 5-star hotel. Five-star hotel. तो इस तरह से इंग्लिश में वर्ब, जब भी वर्ब बता दिया जाए, कोई वर्ड वर्ब है, उसको वर्ब के तौर पे यूज तो करो। तो तुम ओन मतलब अपना बोल दिए, इसका हिंदी करेंगे तो करेंगे मालिक होना। क्या बोलेंगे? Own is मालिक। हालांकि हिंदी में कोई सेंटेंस आप ज्यादा से ज्यादा ही बोल सकते हो, तुम मेरे मालिक नहीं हो, राइट? अब इसको 2 तरह से आप इंग्लिश में एक्सप्रेस करोगे, एक नाउन से और एक वर्ब से। अगर आप Verb वर्ब को चाहते हो तो आप बोलोगे यू डोंट ओन मी, और आप नाउन यूज करना चाहते हो तो बोलोगे यू आर नॉट माई ओनर। Owner. नेचुरल कौन है ज्यादा? Owner. You are not my यू honor. डोंट ओन मी, ये ज्यादा नेचुरल है। Don't हम लोग own. नहीं जानते इंग्लिश, हम लोग अभी इंग्लिश सीख रहे हैं, इसलिए हम लोग को नहीं ये सेंटेंस पता था, बट एवरीबॉडी यूजेस दिस सेंटेंस टू से तुम मेरे मालिक नहीं हो, यू डोंट ओन मी। स्टे इन योर लिमिट्स, यू डोंट ओन मी। लड़कियां सीख लो, शादी के बाद काम आएगा, ओके? स्टे इन योर लिमिट्स,
You don't own me. लड़के, get ready to be owned. क्या कहा मैंने? Get ready to be owned. क्योंकि तुम्हारे बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला बेटा. तुमने जहां बोला ना you don't own me, कहेगी फिर सोफा पे सुत. अरे हेकड़ी निकल जाएगी तुरंत. Okay. They worked on a collective farm. They did not own any land. It means they were not the owners of any land. They did not own any land. When somebody works at your home as a domestic help, then you should not think that you own them. A lot of people have that attitude now. When somebody works at their home as a domestic help, you understand domestic help? Right? As a servant. Okay. I don't like using the word servant. Okay. So if somebody works at your home as a domestic help, then some people think they own them. You know, it's a very bad attitude. You know, you pay them, they work for you, that's it. There is no loss of respect. There is no loss of, prestige. Somebody needs help, they help you, and, somebody helps you and you give them money, that's it. But some people don't look at it this way. They say, he is my servant. I'm the boss. I'm the owner. House owner, chalega, because house is a building. It's a property. But you don't own people. Don't try to own somebody. I've watched, there is a movie called Agni Sakshi. You should watch that. Nana Patekar, Manisha Koirala. Anybody Manisha Koirala fan here? Any Manisha Koirala fan here? Yes, sir. Manisha Koirala was amazingly beautiful in her youth. It's a great movie. Watch this, Agni Sakshi. Okay, let's see. Gagarin was clever at school, guys. Gagarin was clever at school. He was clever at school. But sometimes he Didn't work very hard. Didn't work very ये hard. तुम्हारा चॉइस डिडंट वर्क की वजह से, समझ में आ रहा है? V1 है ये. ओके अगर इसको इज कर दो, मैं कहूँ खुशी इज क्लेवर बट समटाइम्स शी डजंट वर्क वेरी हार्ड. अंडरस्टैंड? Yes, sir. खुशी इज क्लेवर. इज मैं बोल रहा हूँ, तो आगे क्या बोलूँ? Yes, sir. Doesn't बोलना हम लोग को जो She लगे doesn't work very hard sometimes. Got it? Yeah. Yes, sir. Number 5. He was only 1.57 meters. He was only 1.57 meters. Now, He did not He grow didn't very grow tall. very tall. जब मैं छोटा था तो मेरे घर वाले सोचते थे कि मैं लंबा नहीं होऊंगा. When I was young, my family thought, my parents thought, I will not I become will tall. not grow very tall. भाई जब मैं छोटा था तो मेरे परिवार वालों को लगता था मैं लंबा नहीं होऊंगा. When I was small, when I was young, my family thought, I will not grow. कल ही पढ़ाया था मैंने तुम्हें. I will I not grow very would. tall. I would. Would not भूल गए. I would not. I will not grow very प्रॉब्लम मैं सब बता रहा हूँ. मेरी बात सुनो. जो बात मैं बताऊं वो तुम्हें प्रैक्टिस करके दिखानी होगी. कल मैंने तुम्हें सिखाया था हाँ या ना. वुड नॉट. You would सिखाया था कि नहीं not सिखाया था? grow. कल ही बताओ. You would not grow. सिखाया था वुड. Yes, I will come. अमेरिकन वुड लैंडमैन बताया था मैंने कि कैसे व्हील से वुड बनाओ. Yes, sir. अगर याद है तो बताओ, नहीं तो फिर रिकॉर्डिंग देखो, मैं दिखाता हूँ तुम्हें. जिस क्लास में प्रैक्टिस होगी वहां लोग याद Wheel का रखना. पास्ट ऐसे भी सर wheel का wood होता है ना. ऐसे बोल के काम नहीं चलेगा शबनम. Okay, sir. Okay, I will make a sentence, sir. ऐसे नहीं होगा. कहाँ होता है विल का वुड? क्यों होता है विल का वुड? ये तो सोचो. विल का वुड होता है जो मतलब क्या? ये बोल के क्या हमने हासिल किया? विल का वुड होता है. क्या होता है विल का वुड? ससुर, wheel का माँ, wood का मतलब बेटा, कि क्या होता है वो? ये हुआ ना सर मैं जब छोटा था तो मेरे पेरेंट्स सोचते थे मैं लंबा नहीं होऊंगा. हाँ तो ये अभी नहीं है ना पाया. ये पास्ट टेंस की बात हो रही है. राइट. बोलिए बोलते जाइए. तो जब पास्ट टेंस की बात होती है तो Bill का wood. wood होता है ना. तो आपने क्यों नहीं करा था?
क्या सर? फिर करा क्यों नहीं था आपने? सबने विल 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 क्यों बोला, वोंट 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 क्यों बोला? वो हड़बड़ में सर सोचे नहीं और बोल अभी दिए। सुनिए, गौर से सुनिए, गौर से सुनिए। कल का टेक्स्ट पढ़ा बताता हूँ। कल मैंने ये बात एक्सप्लेन की थी। एवरीबॉडी, अगर आप अपने रिवीजन नहीं करेंगे तो ये इसी चीजों के लिए तैयार रहिए कि एक दिन में भूल जाओगे। देखो, क्या कल ये वाला लाइन मैंने एक्सप्लेन किया था? बिफोर द एंड ऑफ 1969 अमेरिकन्स वुड लैंड अ मैन ऑन द मून। कल मैंने ये एक्सप्लेन किया था। यस सर। मैंने आपको बोला था प्रेसिडेंट साहब क्या बोले होंगे, उनके मुंह से क्या निकला होगा? अमेरिकन वुडलैंड। तो आप लोगों ने कोई प्रैक्टिस करी इस सेंटेंस की? किसी ने कुछ लिखा एक लाइन भी? Yes, sir. दिखाओ। वर्क कंप्लीट In यस the सर। group, sir. ओके। In the group. माय फादर, अरे यार क्या बात है। ओके, माय फादर सेड टू मी ही वुड गिव मी अ न्यू फोन। वेरी वेल डन। तो गणपत, तुम तो परेशान नहीं होते? लास्ट मंथ माय ब्रदर सेड टू मी ही वुड गिव मी अ बैट। फैंटास्टिक, वेल डन। On his wedding, my friend spent about 1 billion on his wedding. Okay. Well done, गणपत, गुड जॉब। ऐसे ही थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए मुझे आपसे, और कुछ नहीं चाहिए। गाइस, होमवर्क करना को प्रैक्टिस मत समझना। ऑलराइट, होमवर्क करना इज डिफरेंट, प्रैक्टिस इज डिफरेंट। You need to practice a few sentences. Very, very well यस done, Ganpat. Very well done. सर। थोड़ा Everybody सा else? वेल्डन हम लोग के लिए रहने दीजिए सर। Hmm? ना, थोड़ा सा ना, वेल्डन हम लोग के लिए रहने दीजिए। जब तक वो होगा नहीं, नहीं होने वाला। पूरा सर, पूरा वेल्डन गणपत को ही मिल जाएगा। You're right, सबका, बिकॉज मैं खुश हूं कि एक बच्चे ने करा, किसी ने नहीं किया, कुछ नहीं। गणपत, वेरी वेल डन। ऐसे सारे लोग मोटिवेटेड हो कि हाँ ऐसे करना चाहिए, थोड़ा सा, थोड़ा सा। ओके रेनू, व्हाई आर यू नॉट प्रैक्टिसिंग रेनू? सॉरी सर। Don't say sorry. Remember, it's a constant process, okay? You can't stop it in the middle. So guys, Gagarin was only 1.57 meters. He did not grow very tall. When I was young, my family thought I would not grow very tall, okay? Not grow very tall. Yeah, they called me Bona, Nata. Okay. Okay, he orbited the Earth in April 1961. He orbited the Earth. Remember, कहाँ गई वो? किससे पूछा था मैंने? अब कहाँ है? अंशु, yes, अंशु ने हाथ उठाया। Orbited the Earth. कल ही पढ़ा था ना? He orbited the Earth. He went around the Earth. He orbited the Earth in April 1961. He did not go to the moon. He didn't go to Not the go moon. to the वो मून पे नहीं गया। Did not go. Did का डिसीजन was not क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ go है। go क्या है? V1 है। V1 के साथ V1, yes. was not नहीं लगा सकते, V verb नहीं लगा सकते V1 के साथ। और किसके साथ V verb नहीं लगा सकते? V1. 5 V2 V5 V1, V2, V5 जो सिंपल टेंस के वर्ब्स हैं उसके साथ नहीं लगा सकते। रवि कहाँ बिजी हो भाई? ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना रवि। आप मल्टीटास्किंग करोगे तो कैसे होगा? फिर आप एक बैच बैठो, 4 बैच बैठो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, रिमेंबर, मुश्किल है, पूरा फोकस चाहिए मुझे। He did not go to the moon. Next, after 1961, he continued flying planes. He continued flying planes. Continue के बाद क्या लिखा है? Flying Flying. हिंदी में क्या बोलेंगे? उसने प्लेन उड़ाना जारी रखा। जारी रखा। Sir, I am confused in six sentences. Please. Number 6 sentences. What's your confusion? सर, इसमें क्वेश्चन है, ही ऑर्बिटेड द अर्थ इन अप्रैल 61, तो उसका नेगेटिव में ये गो कैसे आ गया? उसका नेगेटिव थोड़ी है, नहीं, अगली लाइन है। ऑर्बिटेड का मतलब तो यही होता है, घूमना। मेरी बात सुने, हर एक जगह जो जी। ब्रैकेट में लिखा वो अगली लाइन है, उसका नेगेटिव नहीं है, अगला ये लाइन सब है वो वो। अगली अच्छा। आपने इसमें इसको नेगेटिव देखा क्या? ये नेगेटिव है। बॉर्न का नेगेटिव डिड नॉट ग्रो अप हो सकता है क्या? वॉजन बॉर्न होगा ना नहीं। नेगेटिव। यस। ये अगली लाइन है।
शबनम, यस this is सर, a अगली लाइन तो नेगेटिव में बनाना है, नेगेटिव सेंटेंस। He orbited the Earth in April 1961, but he did not go to the. Go to the moon. After 1961, he continued flying planes. वो प्लेन उड़ाना जारी रखा. He continued flying planes. उसने मुझे फोन करना जारी रखा. कैसे बोलेंगे? He continued calling me. Very good. Continued calling me. बहुत अच्छे. आप लोगों ने कॉलिंग बोला क्योंकि आपने यहाँ फ्लाइंग देखा, इस वजह से, राइट? Yes sir. यस सर। वेरी गुड जॉब. कुछ पे आप ध्यान दीजिए इस बात. इन लोगों ने यहाँ पर क्यों बोला कॉलिंग, फ्लाइंग, कॉलिंग क्यों बोला? बताइए. क्योंकि यहाँ पे फ्लाइंग था सर इसमें। तो यानी आप वो को कॉपी करते जारी हो. रखा. हाँ, कंटिन्यू फ्लाइंग है तो कंटिन्यू के बाद आपने कॉलिंग बोला. उसने मेरा इंसल्ट करना जारी रखा. He continued insulting me. दोस्तों, आप इस तरह से सीखते हैं. खुशी, मैंने कहा था आपको कि वर्ब पैटर्न आप गौर करते हैं और आप सीखते हैं. उस पर कोई दिमाग नहीं लगाना, बस सीखना है इसको. सामने है ऐसा. अब ये कंटिन्यू जब भी आपको दिखेगा तो आप ये वाला ध्यान रखेंगे, राइट? अगर कोई बोल दे कंटिन्यू टू फ्लाई, तो continue to fly. आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने क्या देखा? He continued के बाद भी फोर लगा हुआ। अगर चीजें कंटिन्यूटी में होती है तो वहां पे आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। एकदम verb। गलत बात, एकदम गलत बात डॉक्टर साहिबा, एकदम गलत बात. ये चीर फाड़ करने लग जाती हैं. चीजें कंटिन्यूटी में होती हैं. इतना चीर फाड़ करने क्या जरूरत है पूर्वा? खाली ये देखो बेटा कि कंटिन्यू है ना, उसके बाद ये लिखा. कंटिन्यूटी में होती है या नहीं है वो मैटर नहीं है. यहाँ क्या लिखा है? कंटिन्यू. कंटिन्यू के बाद भी फोर कंटिन्यू के बाद अगर कोई वर्ब आएगा तो कैसे लिखा है? ये कैसे लिखा है? ये लेसन है हमारे लिए क्या? अच्छा. और आदत पड़ जाएगी, अगर आप बार बार सुनोगे तो आप भी ऐसे ही बोलने लगोगे. अच्छा चलो, मैं सबसे पूछता हूँ, बोलो. आई वॉन्ट टू फ्लाई प्लेन्स, क्या वॉन्ट फ्लाइंग प्लेन्स? कौन सा बोलना चाहोगे? आई वॉन्ट टू फ्लाई प्लेन्स, आई वॉन्ट फ्लाइंग प्लेन्स? चलो बताओ. I want to I fly. want to fly. I want to fly. चुप क्यों हो गई शबनम? यस सर। बताओ क्या बोलना है? आई वॉन्ट टू फ्लाई प्लेन्स, आई वॉन्ट फ्लाइंग प्लेन्स? I want to, I am confused but I want to fly planes होना चाहिए। ठीक है, ठीक है. आप कंफ्यूज थी लेकिन आपने अपना उंगली रखा वांट टू फ्लाई पे. चलो ठीक है, सब लोग अपना अपना उंगली रख दीजिए जिधर मन उधर. आई वांट टू फ्लाई प्लेन्स, आई वांट फ्लाइंग प्लेन्स. जिसको जो मना है बोलो, कोई दिक्कत नहीं है. फ्लाई पे. आई वांट टू fly. हाँ, ओके. सुलेखा, अंशु. तो यहाँ पे कंटिन्यूड है I तो want to flying planes. I want I want to fly plane. wanted flying plane। हाँ चलो, अभी एक काम करते हैं. मुझे थम्स अप दे देंगे टू फ्लाई वाले, और कुछ और सिंबल दे देंगे. थम्स अप देंगे टू फ्लाई वाले, और हार्ट दे दीजिए फ्लाइंग वाले. चलिए ठीक है, जिनको लगता है फ्लाइंग होना चाहिए. आई वॉन्ट टू फ्लाई, आई वॉन्ट फ्लाइंग प्लेन्स, तो थम्स अप दीजिए टू फ्लाई बोलने वाले, और हार्ट दीजिए फ्लाइंग बोलने वाले. कम ऑन क्विकली. I go to Quickly. Why is it taking so much time, guys, to send your response? Fly planes. मुझे अब want to जवाब fly चाहिए. अब हो मुझे thumbs up और heart चाहिए. Thumbs up for to fly and heart for flying. heart sir, heart। हाँ ठीक है, ओके. यहीं दे दो ना बेटा, स्क्रीन पे दे दो ना गन पर. अंशु ने हार्ट दिया एंड काशिफ ने हार्ट दिया. और कोई हार्ट देने वाला? सर हमने भी हार्ट दिया सर। शबनम ने हार्ट दिया, 3 है हार्ट दिया. और कोई? रुखसार ने भी हार्ट. ओके फाइन. मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था. मुझे लगता है इन लड़कियों ने ऐसे ही हार्ट दिया है. बस मैंने कहा है तो इतने सारे हार्ट कब क्या करेंगे? इसलिए हार्ट दिया इन्होंने, बाकी इनका कोई इरादा नहीं था. हाँ सर हाँ, अब इतने हार्ट का क्या करेंगे? यही तो मैं बोल रहा हूँ. इन लोगों ने डिसीजन की वजह से हार्ट नहीं दिया. इनको मौका मिला सर को हार्ट भेजने का तो भेज दिया. ठीक है, कहा कि चलो ठीक है, अच्छा है. सुनिए, आप सब लोग जिन्होंने हार्ट भेजा, आप लोग बहक गए हैं, बहक गए हैं आप लोग, और कुछ नहीं. You guys are getting carried away.
आप कभी नहीं बोलते ऐसा, आप हमेशा बोलते हैं आई वॉन्ट टू डू इट, आई वॉन्ट टू गो देयर, आई वॉन्ट टू यस डू दिस, सर, आई वॉन्ट इसीलिए टू तो स्विम, कंफ्यूज हो रही थी हमेशा बोलते कि आई हैं। वांट अब टू के बाद V1 यूज होता है, तो फ्लाइंग तो कैसे रहेगा? जल्दी से सुन लिया जाए कि आपको ये कोई रीजनिंग नहीं है, बात तो एक ही रहेगी ना, टू फ्लाई बोलो, टू फ्लाई बोलो या फ्लाइंग बोलो, बात तो एक ही रहती है। आई वॉन्ट टू फ्लाई प्लेन्स, आई वॉन्ट फ्लाइंग प्लेन्स, बात तो एक ही है। दोनों में चाहना, दोनों में हवाई जहाज उड़ाने चाहने की बात हो रही है, लेकिन आप सबका नेचुरली टू फ्लाई निकलता है, आदत पड़ गई है सुनते सुनते। तो जितनी इंग्लिश सुनी उतनी पड़ी आदत, अब और ज्यादा ध्यान से सुनो और ज्यादा आदतें पड़ेंगी। तो बताओ, कंटिन्यू, ही कंटिन्यूड टू इंसल्ट मी, ही कंटिन्यूड इंसल्टिंग मी, क्या? इंसल्टिंग मी। इंसल्टिंग मी। क्यों? He क्यों? continued to insulting. He अपूर्वा, इसका जवाब दो, continued अपूर्वा in जवाब दो, क्यों? insulting me. Sir, Because after after continue, continuing, we use V form, verb for fourth form of the verb. क्योंकि आप लोगों ने कंटिन्यू के बाद फ्लाइंग देखा, इसलिए आपको पूरी फ्रीडम है कंटिन्यू के बाद आईएनजी वाला फॉर्म बोलने का। बात समझ में आ गई? अब सुनिए sir. गौर से, कुछ वर्ब्स अलाउ करते हैं कि आप ये टू आईएनजी बोलो या 2+V1 बोलो, फर्क नहीं पड़ता। कुछ वर्ब्स अलाउ करते हैं आपको, जैसे आई वांट के बाद आप नहीं बोल सकते थे आई वांट वॉचिंग टीवी, नहीं बोलेंगे आप बोलेंगे आई वांट टू वॉच टीवी। Watch TV. कोई निकलेगा, आदत पड़ी क्यों? सुनते सुनते। तो जो सुनेंगे उसकी आदत पड़ेगी ना। तो ध्यान रखना, कंटिन्यू के बाद देखो वहां क्या लिखा है, फ्लाइंग, तो आदत यही पड़नी चाहिए, तो देखो उसकी आदत पड़नी चाहिए। ये अलग बात है दोस्तों कि कंटिन्यू उन कुछ फ्रेंडली वर्ब्स में से है जो कहता है भाई मेरे बाद तू आईएनजी रख तो भी ठीक है, 2+V1 रख तो भी ठीक है, मुझे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप दोनों बोल सकते हैं, लेकिन आपको रिस्क नहीं लेना था जब तक आप वो देखे नहीं। यानी देखना इज सीखना। बात समझ में आ गई? किसी जगह आपने देख लिया लिखा हुआ ही कंटिन्यूड टू इंसल्ट मी, ही कंटिन्यूड टू इंसल्ट मी, आपने देख लिया लिखा हुआ कहाँ? किताब में, जिसको आप ट्रस्ट करते हो कि ये गलत नहीं लिखता। ओके, तो अब आप वहां से वो भी सीख जाइए कि ओ ये भी होता है। चलो ठीक, आई बात समझ में? यानी वर्ब के बाद जो लिखा रहेगा वो आप गौर करके सीख जाओगे, खाली गौर करके सीख जाओगे, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। सुनो, आई होप टू सी यू टुमारो, आई होप टू सी यू Tomorrow. तो उम्मीद करते हैं कि कल मिलेंगे हम आपसे। आई होप टू सी यू टुमारो, ठीक है? अब बोलिए कि उम्मीद करते हैं कि हम पास कर जाएंगे एग्जाम, कैसे बोलना चाहिए? I hope to I hope to pass pass the exam. क्योंकि अभी आपने सुना होप टू सी यू, टू सी यू, होप टू सी यू, टू सी, आप वैसे ही क्या बोलेंगे? I hope to Pass the I hope exam. to pass the exam. टू पास। I hope to pass the exam. इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? सीखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? गौर से। ठीक है, अब गौर से सुनिए, इससे ये पता चला कि सीखना है तो हमें गौर से देखना पड़ेगा, गौर से सुनना पड़ेगा, हाँ कि ना, ताकि पता चले कि कैसे लिखा गया था। समझ में आई बात? Yes, sir. और कुछ नहीं करना है, बस गौर से देखिए। He continued flying planes. He continued flying planes, but he But he did not go He into did the not space again. didn't go into space. He didn't go into space again. मुझे एक सवाल, मेरे को एक सवाल है शबनम से। शबनम कह रही है कि सर ये नेगेटिव कैसे हुआ? बाकी कोई तो नेगेटिव नहीं था, आपने इसके बारे में कैसे पूछा कि नेगेटिव कैसे हुआ? जो नंबर 6 में आप परेशान थी कि उसका नेगेटिव कैसे हो गया, तो बाकी में कहाँ नेगेटिव हो नहीं रहा सर, था? नेगेटिव से नहीं परेशान थी, वो ऑर्बिट और गो में परेशान थी। तो मैं वही चीज आपको दूसरे जगह भी दिखाता हूँ, आप उसमें क्यों परेशान नहीं हुई? देखिए तो यहाँ क्लेवर डिड नॉट वर्क हार्ड, ये कैसे हो गया? वर्कड डिड नॉट ओन, ये कैसे हो गया? पुअर डिड नॉट हैव, ये कैसे हो गया? वॉज बोर्न डिड नॉट ग्रो, ये कैसे हो गया? सर डिड नॉट में परेशान नहीं थी सर, वो ऑर्बिट और गो में परेशान थी कि ऑर्बिट है, यहाँ पे गो आ गया। आप मुझे बताइए, यहाँ क्लेवर है यहाँ वर्क है, ये कैसे हो गया? चलिए छोड़िए, आप ही की बात। हाँ सर, दोनों अलग अलग सेंटेंस है, समझ में आ गया। नहीं, इतनी देर से क्यों? यही तो मेरा प्रॉब्लम है, आप शबनम समझ नहीं रही।
मैं कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स के मामले में डरता हूं और कुछ के बारे में कॉन्फिडेंट फील करता हूं। मैं बताता हूँ साफ साफ क्या होता है। मैं आपके बिहेवियर को ऑब्जर्व करता हूँ आपके बिहेवियर को, देखता हूँ कि आपका बिहेवियर उस डायरेक्शन में जा रहा है जिधर चीजें आसान होने वाली आपके लिए, तो मैं रिलैक्स रहता हूँ कि कुछ नहीं, टेंशन नहीं है, ये लड़का लड़की जो भी है स्टूडेंट है ये थोड़ा मेहनत करेगा, ये सही जा रहा है, इसका सोचने का नजरिया। और कुछ लोगों के बारे में मुझे डर ये लगता है कि इनको अगर मैं हर जगह ना हेल्प करूं तो ये तो कुछ और देख लेंगे। और ये शबनम ये चीज हुआ मुझे अभी आपके साथ। आपने एक ऐसा सवाल पूछा कि सर ये तो इसका नेगेटिव नहीं है ऑर्बिट का गो। मैंने कहा कहीं भी नहीं है, यहीं पे क्यों गौर करा आपने, ये सवाल है। और ये मुझे डरा रहा है शबनम, क्या आप ऐसे ऑब्जर्व करेंगी? कम कम नहीं सर। मुझे आपसे चाहिए कि आप और ज्यादा घुस के देखें। जो चीज आप इसके बारे में बोल रही हैं वही चीज तो आप पिछले वाले सेंटेंस में भी बोल सकती थी कि सर यहाँ दो अलग अलग वर्ब्स हैं। आप समझ रहे मेरे कहने का मतलब? आपने Yes, sir. वहां नहीं पूछा, 6 में क्यों पूछा? ये सवाल है मेरा। अगर आपका कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है, जैसे कभी कभी कोई सवाल आता है ना, तो मैं कहता हूँ हाँ ये अच्छा सवाल है, इससे आपका दिमाग खुलेगा। लेकिन आपने जो सवाल पूछा, मैं इसका जवाब दे के आपका दिमाग नहीं खोल सकता हूँ। मुझे तो वो पूछना पड़ेगा आपने बाकी में क्यों नहीं पूछा ये सवाल, क्योंकि किसी में मैच नहीं कर रहा देखा जाए तो। आप समझ रहे मेरी बात? क्यों नहीं देखा शबनम? बस ऐसे ही नहीं देखा सर। यही तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि सीखने के लिए क्या करना ज्यादा जरूरी है? ऑब्जर्वेशन। बढ़ाएंगी? वी ऑब्जर्व डीपली। हाँ वी शुड exactly. ऑब्जर्व डीपली। Exactly, Shabnam. Now you're talking. Okay. So you promise that you will observe more deeply now? Yes, sir. Of course. I will full try. Definitely. That's great. Okay, let's move on. Guys, after 1961, he continued flying planes, but he did not go into space again. बोला एक बार तो बच गई भाई, दोबारा नहीं. All right, this is what he said. He did not go into space again. Number 8. No. He refused actually. He was not very excited about it. He died in a plane crash in 1968. He died in a Plane crash in 1968. He died. He died. We too have died. He died in 19. Investigators Did not know why his plane crashed. नाम मैं आपको फिर टारगेट कर रहा हूं, ध्यान रखिए। तो मैं अब आपको बहुत ज्यादा पूछूंगा, ठीक है, कि आपका ध्यान कहाँ है। फिर से रिपीट करिए उस सेंटेंस को। Investigators did not know why his plane crashed. हिंदी। इन्वेस्टिगेशन को पता नहीं था कि क्रैश कैसे हुआ। इन्वेस्टिगेटर्स को पता नहीं चला कि क्रैश कैसे हुआ, राइट? अब आप मुझे बताएं कैसे बोलेंगे ये बात, क्रैश कैसे हुआ? पास्ट टेंस है सर, क्रैश होगा ना? यस काशिफ, यही तो मैं हाईलाइट हुआ था, मतलब वही हुआ था। तो आपने क्रैश V1 क्यों बोला? क्रैश्ड। अब आप मुझसे ना पूछें, यही तो मैं चाहता हूँ, आपका ऑब्जर्वेशन क्या कहता है? जब डिड नॉट लगा तो क्रैश्ड होगा सर, क्रैश ही होगा। डिड नॉट तो उसके लिए है, डिड नॉट तो नो के लिए है, डिड नॉट क्रैश के लिए। आप मुझे बताएं। नहीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी अलग सेंटेंस है। व्हाई हिज प्लेन क्रैश्ड। तो ये क्रैश डी कैसे छूटा लोगों का? जिसका छूटा पूछो कैसे छूटा। क्या तुम्हारे दिमाग में सेंस है पास्ट टेंस का? कैसे छूटा ईडी दोस्तों? इन्वेस्टिगेटर्स डिड नॉट नो व्हाई हिज प्लेन क्रैश। पता है ना, क्योंकि पास्ट में क्रैश हुआ ना, तो V2 चाहिए होगा। हिज प्लेन क्रैश। Investigators did not know why his plane crashed. Shabnam. Yes, sir. अच्छा, What, sir? आप समझ गई? लेकिन ये बार बार हाईलाइट करवा रहा हूं मैं कि आपको बहुत ज्यादा गौर करना है ताकि आपकी समझ बहुत बेहतर हो। ओके, नाउ नंबर 2, complete the sentences with a verb in the negative. I went shopping but everything was too expensive.
I went shopping, but everything was too expensive. Expensive. I did not buy anything. I didn't buy anything. I didn't buy anything. Make तो sense? इसलिए Make sense, everyone? Yes, sir. I went अच्छा, कुछ लोग अभी भी नहीं ध्यान देंगे, went shopping को बाद में वो went to shopping बोल देंगे। आदत छुड़ाओ, ध्यान से गहरे I से went देखिए। shopping. शॉपिंग एक्टिविटी में जगह नहीं है। went to the I went shop, shopping. went to the cinema, Went to the shop, Cinema. but I went Went to the shopping. Taj shopping Mahal. activity है। I went shopping, I went I went shopping. shopping, I went fishing, I went skiing, I went hunting. I went playing. नहीं, बाकी वो एक्टिविटी नहीं है, प्लेइंग एक्टिविटी नहीं है। ये कुछ भी वर्ब डाल दे क्या? यही तो बात है, इसीलिए तो इंग्लिश पागल वाली भाषा है। ठीक है, आपने सोचा सही Singing, sir. कि भाई Singing. I went singing. हाँ बिल्कुल करेक्ट, स्विमिंग एक्टिविटी है। ओके, आई वेंट स्विमिंग। ओके, ये बाकी ऐसा नहीं कि आई वेंट कुकिंग करने लग जाए हम लोग। ओके, आई वेंट प्लेइंग, आई वेंट कुकिंग, आई वेंट लर्निंग, ऐसा नहीं करना। ओके, नो, I didn't buy anything. Number 2, my wife and I had a quiet weekend at home. नाम सब लोगों ने करा है? अपना होमवर्क भेजिए ग्रुप में। यस सर Sir, I have a small confusion. My wife and I. हाँ, Can I use we? दोनों की जगह वी। Yes. अगले सेंटेंस में कि इसी में? अगले इसी में सेंटेंस sir. में इसी में We बोलेंगे। didn't कैसे go पता चलेगा anywhere. वी में कौन कौन है? सर अगले सेंटेंस में वी लिखेंगे ना, वी डिडंट गो एनीवेयर। हाँ भाई बिल्कुल, एक कॉमन सेंस मैं उम्मीद कर रहा था, इसलिए मैंने पूछा। अगले sentence- भाई हिंदी में बोलते मैं और मेरी पत्नी इसमें नहीं सर, अगले सेंटेंस का बात करें ना। We didn't go anywhere. भाई तू बच के भाग रहा है। भाई लोग सुनो, इसका इरादा क्या था बोलने का? इस लड़के नहीं को सर, जेल अगले जाना चाहिए। वेट करो, मुझे बोलने दो। इस लड़के को जेल, मैं बता रहा हूँ क्यों। उसने कहा माय वाइफ एंड वी। सोचो, मजाक करे काश, डोंट बी सीरियस बॉय, कम ऑन, आई एम जस्ट जोकिंग। ओके, my wife and I had a quiet weekend. Everybody had a quiet weekend at home. We had a quiet weekend. ऐसा है ना, आप लोग पढ़ के छोड़ देते हो, आप सीखते ही नहीं। अभी लाइन कौन सीखेगा बोलना ना? कल ना हम चुपचाप से घर पे रहे, कल ना हम चुपचाप से घर पे रहे। कल संडे था ना भाई। I had a quiet weekend at home. I had a quiet weekend at home. we didn't go anywhere. We didn't go anywhere, right? Number 3, unfortunately, Unfortunately, I in the exam. I didn't pass. भाई लोग क्या कर रहे हो? कालिया पूर्वा बोल रही है। मेरा I did not pass. I didn't pass. I didn't pass. नहीं, I didn't get pass होगा ना? होगा ना? नहीं, I didn't pass, बस ऐसे होगा ना। I didn't get खराब pass. कर लेती है, गौर करिए। आप होगा ना बोल के उसको हिंदी बना देती हैं। पूरा बात पढ़िए ना। Unfortunately, I only got 35% in the exam. I didn't pass. अब आप इतना पे रुक जाए तो आपको लगेगा आपने इंग्लिश बोली, और आपने ये बोलने के बाद didn't pass होगा ना, आप हिंदी में बोल रही हैं। क्या करना चाहेंगी आप? No इंग्लिश sir. English. She said ना sir कि I didn't get pass होगा, मतलब get वो she used get before pass sir. Did she? सब ना आपने get भी यूज किया इसमें। अच्छा, हिंदी में बोले तो हम पास नहीं किए, इसमें get कहाँ आया? I didn't pass. Yes. वो पूरा बैड इंग्लिश है सब ना। गेट पास बोलना ना बैड इंग्लिश बताते। ओके, इसलिए तो सब कंफ्यूज हो रही थी कि गेट तो यहाँ पे आई डिडंट पास। ओके, आई डिडंट पास। जब ना किसी को आपको बताना है तुम पास नहीं किए, कैसे बताएंगे आप उसको? I didn't pass. पास नहीं किए। सामने वाले को बोलना है कि तुम पास नहीं किए, सॉरी तुम फेल कर गए। You didn't pass. You didn't pass, you failed. You didn't pass. You failed. You didn't pass. Okay.
Number 4, Pete went to a party, but it wasn't very good. He I did didn't He stay. didn't He stay. didn't want to Stay. क्या लिखा आपने? He he didn't didn't stay. ये I didn't stay बोल रहा है मेरे बगल में बैठा लड़का। ये मेरे को he वायलेट didn't मजबूर कर रहा है दोस्तों। अगर आपको पता चला कि यहाँ पर मर्डर हुआ है तो डोंट ब्लेम मी, ओके? ही इज सेइंग आई डिडंट स्टे। भाई इसमें आई कहाँ से आया? पीट वेंट टू अ पार्टी बट इट वाजंट वेरी गुड, आई डिडंट स्टे। क्या लॉजिक है भाई? हैं? Come on. Pete went to a party, but it wasn't very good, so he didn't stay. He got I didn't stay. किधर से connection है? So don't make such mistakes, guys. Please. This shows that you are not very focused. That's all, okay? I saw Jenny in town, but I was very busy. I saw Jenny in town, but I was very busy. talk to her. I didn't have I didn't have time to talk to her. To talk to I didn't have her. time to talk to her. Number 6, my parents' holiday was awful. It rained every day. Every day. They they didn't. didn't They they didn't didn't enjoy they it. didn't enjoy it. They didn't. They didn't enjoy I it. want to hear it from you, Apurva. Apurva. Huh? Answer. Number 6. They didn't enjoy it. They didn't enjoy it, sir. They Didn't They enjoy it Enjoy it. because, sir, I explain after enjoy it is used and it is used for holy day, sir. I remember the things you okay. Okay, good, you Apurva, that you remember. I'm very glad that you remembered it. Bhai Saab, Ravi Bhai Saab, unmute yourself. We can hear some real big noises coming from your side. Okay. Okay, number 3, questions. Match a question word in A with an answer in B, everybody. When? 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 on Sunday. On 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 Sunday. Sunday. on Sunday. अच्छा फिर से पूछो when, तब क्या बोलोगे? On Sunday. on When? Sunday. When on Sunday. When did एक ही you जवाब बोलते रहना है हमेशा. When? इसको कहते हैं lack of imagination. इन Sir, लोग at 4 o'clock. that's also fine, absolutely. Okay, आप लोग देखें इमेजिनेशन कितना कम यूज करते हो. वहां पर ऑन संडे लिखा, आप ऑन संडे बोले जा रहे हो. आपको पता है क्या करवा रहे थे हम आपसे? चाह रहे थे कि व्हेन के साथ आप कंफर्टेबल हो. तो व्हेन ऑन संडे, मैंने फिर पूछ दिया व्हेन. In the morning. In the morning. Good, Shabnam. When? In the afternoon. Okay, At the party. okay, Kushi, no problems. Next. Go on. Yes. When? On holiday. Okay, when? At party. Okay, I understand. Yep, when? At the party. Yes. When? In wedding. Start the movie. In 2016. When? In wedding. on wedding? Started class. When? Now. When, Shabnam? When? Started Now. our English class. नहीं. When का जवाब ये कैसे हो सकता है? When का जवाब? When? अच्छा आप हिंदी में दीजिए. चलिए छोड़िए इंग्लिश में. When? Bye कब? bye, sir. Wait, bye काशिफ. शबनम, when? हिंदी में आप बताइए. When? कब? In the afternoon. नहीं वो जो क्लास वाला स्टार्टेड वाला बोला था उसको हिंदी में बोलिए. मैंने हिंदी कहा में, हिंदी when में. started our English हिंदी- class. हमारा इंग्लिश हिंदी में. कब स्टार्ट हुआ था? मैंने, आप समझ नहीं रहे हैं. अगर कोई when पूछेगा तो क्या क्या जवाब हो सकता है, ये है सवाल. ये थोड़ी है कि when के साथ क्वेश्चन बनाना है किसी को. अभी वो नहीं कह रहे थे. when का क्या जवाब हो सकता है? when on Sunday आपने किया ना, तो ये जवाब है ना शबनम when का. When on Yes. wedding. शबनम क्या हो रहा है? Sunday. शबनम क्या हो रहा है? मैं बता रहा हूँ क्या हो रहा है. आप एक्सरसाइज का पर्पस नहीं समझ रहे हैं. आप एक बार एक्सरसाइज का पर्पस समझ जाएंगे ना तो आप फटाक फटाक करेंगे. जब मैंने पूछा व्हेन तो वहां लगा है ऑन On संडे. Sunday.
तो ये क्या था? जवाब था। जैसे कुछ भी सवाल हो कि व्हेन डिड यू हैव द एक्सीडेंट? ऑन संडे। व्हेन आर यू कमिंग? ऑन संडे। on व्हेन डिड Monday, यू on व्हेन डिड यू in हैव चिकन? January, ऑन संडे। तो ऑन on संडे holiday, जवाब है, तो दूसरे जवाब सोचो, अपने तरफ से अपना इमेजिनेशन यूज करो और जवाब दो। व्हेन? in In the weekend, end of the month. On wedding. सॉरी निशात। on wedding, In this year. In wedding. इन द In Wedding. this year. in the at the end wedding. of When? days, At the wedding. At wedding. At At the a wedding. wedding, sir. At the wedding. At wedding, yes. At At the wedding. wedding. At the wedding. At the wedding. At the wedding. सदिया में। कब? अरे सदिया में। ठीक है। Mhm. अरे सदिया में। At the wedding. Yes. When? And sir, in this year. The end of the year. This year, not in this year. कल ही करेक्ट किया किसी ने तुमको, फिर भी वही बोल रहे हो तुम। कल ही अपूर्वा ने करेक्ट किया था तुमको। अपूर्वा आपने कल ही करेक्ट किया था ना, इन दिस ईयर को दिस ईयर। Yes, sir. फिर भी वो फिर वही बोल रहा है इन दिस ईयर। जिद्दी है वो, नहीं मानेगा। वो कहेगा हम इन दिस ईयर को सही करवा देंगे, ग्रामर चेंज करवा देंगे। रवि ग्रामर चेंज Sir, करवा at देंगे in वो, the जिद्दी end है। of the year. In the end of the year, sir. At the end of When the year. in the, At the end at of the the year. end. At the end of the year. Okay. समझ में आया दोस्तों? आप लोग एक्सरसाइज का पर्पस समझते हो? एक्सरसाइज का मकसद क्या है? Why? Why? Because Because I wanted to. Because I Why? wanted to. Why? देखो Because of Why are you? Because I wanted to. Because I want to. Because I don't like. Because I because am. I don't like it. Because I'm busy. Because I'm busy. Why? Because Because I I'm am not tired. feeling well. Because I'm not feeling well. Why? because I loved it. Because शबनम love बहुत her. हंसती है, पता है क्यों? शबनम को बहुत ही थ्योरेटिकल एक्सरसाइजेस की आदत है। अभी मुझे खुशी इस बात की है कि शबनम इतनी फोकस्ड होके कर रही हैं। होता क्या है ना शबनम, कि जब आप पूरा टेंशन लेके आती है तब आपको एहसास होता है कि काम मुश्किल हो रही है। उसके पहले सब सही लगता होगा। आयशा, तुमको जब लगने लगे ना कि कुछ मुश्किल हो रहा है, तब समझो कि कम से कम तुम सीख रहे हो। कई बार स्टूडेंट्स को तो पता ही नहीं चलता मुश्किल क्या हो रहा है। उनको अपनी गलती भी नहीं पता चलती कि मैंने कहाँ क्या किया है, मुझे क्या करना है, कुछ नहीं, बस फ्लो में चल रहे हैं। ये भी एक अच्छी चीज है शबनम। अब भाई आप महसूस करें कि मुझे क्या बोलना है, आपको वाई का जवाब देना है। और ये जितने लोग जवाब दे रहे हैं वाई का, ठीक है ना, ये सब अपना इमेजिनेशन यूज कर रहे हैं शबनम, सब अपना इमेजिनेशन यूज कर रहे हैं, इसीलिए कुछ बोल पा रहे हैं। क्योंकि जो भी जवाब दे रहा है ना, उसके फट से उसके दिमाग में एक सवाल भी बन जा रहा होगा कहीं ना कहीं, तभी उसी का जवाब दे रहा है। जैसे मौनी ने कहा, क्या कहा मौनी तुमने अभी? because I'm I not am feeling tired. well. Because I am not feeling very well. Yes. तो okay, you know, family. Yes. Why? Why? because I Because focus. I'm. I am Yes, busy. Shabnam, what did you say, Shabnam? Because I focus. Okay, because I focus. इसका क्वेश्चन क्या होगा? Why do you understand things so quickly? Because I focus. Okay. Why? Why I'm tired. Because I'm tired. Because it is cold. Because I want to do. Because I want to do it. Do it. Because I want to do it. आप लोग अपना खुद का करेंगे थोड़ा? Yes, sir. Yes. कोई भी एक्सरसाइज को पूरा यूज करिए, पूरा गन्ने का पूरा जूस निकालिए, उसको आधा आधा चबा के मत फेंकिए। हर एक एक्सरसाइज एक गन्ना है, उसका पूरा जूस निकालिए। दोस्तों, जूस है फायदा, समझ, पूरा फायदा लीजिए। और नूर, तुमको क्या बोला आतिफ ने कि आओ सर नहीं डांटेंगे? ये तो मेरा तरीका था तुमको फंसाने का। तुम आ गए, अब तुम्हें डांट सुननी पड़ेगी। क्योंकि अगर बोला जाता कि तुम आओगे तो डांट सुनोगे, तो तुम नहीं आते। यू वुडंट कम, तुम नहीं आते, यू वुडंट कम, तुम नहीं आते, यू वुडंट कम, बट नाउ यू आर हियर। सो सर जैसे कि why का होगा because he hurts me. क्या? Why? Because he hurts me. हाँ सही है। बहुत देर तक अटके हुए थे वहां पर आप। हाँ
हम लोग आगे बढ़ गए थे, हम लोग नूर को बेनूर कर रहे थे। नूर यस सर। कहाँ थे भाई? सर हम्म सर I sir I want to ask now. Sir, can you explain one more time? Wood is used where, sir? कल वाली वीडियो जरूर देखना पूर्वा। कल थी तुम? Okay, sir. Yes, sir. रिकॉर्डिंग नहीं देखा होगा तुमने दोबारा। नहीं नहीं। Please watch, and I'm going to explain it to you, but first watch the recording. I will definitely explain, no problems, but I want Okay, you to okay, watch that okay, particular. sir. Everybody, Okay. आपको जहां जहां मुश्किल होती है रिकॉर्डिंग देखिए, प्रैक्टिस करिए ग्रुप में। ग्रुप में अगर आप एक्टिव नहीं हो तो मैं मानूंगा कि आप सीखना नहीं चाहते। एक लाइन खत्म बात। आपके होमवर्क करने का वैल्यू नहीं है, आपके क्लास में आने का वैल्यू नहीं। आई वॉन्ट यू टू बी एक्टिव इन द ग्रुप एवरी डे। A couple of sentences जो मैंने आज क्लास में सिखाया, गणपत जो तुमने कल किया है, मुझे रोज चाहिए तुमसे। Sir, I remember what you explained on that line, but I little bit confused. Sometime when I sir like आपने बताया था ना उस लाइन के बारे में, जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड था सर। सर तो वो मैं समझी, लेकिन मुझे ये जानना था कि वुड कैसे यूज करेंगे सर। सर कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है सर बोलने के टाइम में, इसलिए पूछ रही हूँ सर। सुनिए, आपको सारी बातें नहीं पता है वुड के बारे में। मैंने नहीं कहा कि मैं वुड सिखा रहा हूं, मैंने ये नहीं कहा था। मेरा टॉपिक नहीं था वुड सिखाना। तो ये मत मेरी मुझसे पूछिए कि वुड कैसे यूज करना है, बिल्कुल नहीं। मैंने कल एक खास तरह का सेंटेंस बोलना सिखाया था कि आप वो सेंटेंस सीखें, बात खत्म है, इतना ही। प्लीज किसी यस को ये कभी टॉपिक नहीं बनाना चाहिए वुड कैसे यूज करना है और कुड कैसे यूज करना है। मैं एक खास तरह का सेंटेंस सिखाता हूँ, वो सेंटेंस समझ गए आप, आगे बढ़ गई, बात खत्म हो गई वहीं पे। क्योंकि जिसने वुड सीखने की कोशिश की जिंदगी भर वो वुड बुढ़ाया, कभी नहीं सीखा। ठीक है? क्योंकि इतने कॉम्प्लेक्स एक दूसरे से कहते ना अनरिलेटेड यूसेस हैं वुड के, कि एक बार में सिखाने का मतलब है 5-6 चीजें एक साथ सिखाना, पागल हो जाएंगे आप। ठीक है? आपने नो एक चीज सीखी। जस्ट प्रेसिडेंट ने कहा था कि हम लोग बिफोर द उतार एंड ऑफ यस वी सर विल बिफोर द वी विल लैंड यस। मैन, उसने कहा वी विल लैंड मैन। ठीक है? तो आप क्या करो ना, आप खाली गणपत के सेंटेंसेस पढ़ लो और आप समझ जाओगे वुड कैसे यूज करना है। जो मैंने सीखा वो बस उतना ही। वुड कैसे यूज करना है टॉपिक नहीं था कल, टॉपिक था एक खास तरह का सेंटेंस। गणपत ने कितना बढ़िया सेंटेंस लिखा। इसने लिखा मेरे भाई ने पिछले साल बोला कि वो मुझे बैट देंगे, तो भैया ने क्या बोला होगा, आई विल गिव यू अ बैट, आई विल बाय यू अ बैट। अब वो बात हमको बता रहा है। कैसे बता रहा है? भैया सेड टू मी दैट ही would सर मतलब जो पास्ट में चीजें हेलो बोलिए सुन रहे हैं। मतलब सर ये वो मैं समझी सर, जो कल भी पढ़ाए थे वो समझी थी। मतलब जो पास्ट में चीजें कही गई है पूरा करने से रिलेटेड, या फिर कुछ मुझे उस एक बात तरीके से पूछना है, अगर आप समझ गई थी तो इसको रिफ्रेश क्यों कर रही हैं? सर, क्योंकि बोलने टाइम ना वो बोलने टाइम सेंटेंस बोलना है कि ये सब लेक्चर बोलना है, ये बताइए पहले। जो अभी आप दे रही हैं ये पास्ट टाइम में, ये मैं आपको रोक रहा हूँ ये सब करने से, पता है क्यों? क्योंकि आप फंस जाएंगी आप सिर्फ वो सेंटेंस सुनिए और सिमिलर सेंटेंस बोलिए, जैसे गणपत ने किया कि प्रेसिडेंट ने कहा था वी विल लैंड मैन ऑन द मून, लेकिन हम लोगों ने पढ़ा प्रेसिडेंट कैनेडी सेड दैट ही अमेरिकंस वुड लैंड मैन। तो गणपत का सेंटेंस पढ़िए और सिमिलर सेंटेंस लिखिए और कुछ मत करिए पूर्वा। मैं आपके इंटरेस्ट में बात करो बेटा, याद रखिएगा। आपका ये जो तरीका है ना कि आप उसको रीफ्रेज करती हैं, पास्ट में से रहेगा तो ऐसे करना है, बाज आइए इन चीजों से। ठीक है? जितनी ज्यादा हो सके आप सिर्फ वो सेंटेंस गौर कर लो कि वो सेंटेंस कैसा था। क्या वो सेंटेंस आप बना सकते हो? अगर हाँ, बढ़िया बात। नहीं बना सकते, दूसरों का पढ़िए, उनको पढ़ने से आपके अंदर फिर जहन में एक्स्ट्रा बातें आएंगी। तो जिस भी स्टूडेंट को सेंटेंस फॉर्म करने में मुश्किल हो कोई भी तरह का, वो दूसरों का सेंटेंस जरूर पढ़े। आई प्रॉमिस आपकी मदद करेगा। ओके? और रिप्लेस मत करिए उन बातों को दोबारा से, ऐसे बोल देते हैं ताकि हम समझ जाएंगे बेहतर। नो 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 नो, आई डिड नॉट टीच द यूज ऑफ वर्ड,
I did not explain how wood is used. I just taught you a sentence, one sentence. And that sentence was, American President Kennedy said that Americans would land a man on the moon. मैंने कहा इमेजिन करो कि वो प्रेसिडेंट क्या बोले होंगे. इमेजिन करो, यहां से चला था मामला, ठीक है. Yes, तो sir. प्रेसिडेंट बोले we will land a man on the moon. यही कहा ना. Yes, sir. तो गणपत के भैया ने क्या बोला था, इमेजिन करके बताइए. उसको बैट दिलाएंगे. उनके भैया के वर्ड्स क्या थे अपूर्वा, इमेजिन करिए. मैंने कहा I will give you bat. I will give you a bat. अपूर्वा, यस अपूर्वा. I will give you a bat. I will buy you a bat. ठीक है. Yeah. चलिए, give you a bat, buy you a bat. अब आप अपूर्वा यही बात अपनी मम्मी को कैसे बताएंगे जाके. Ganpat's brother said that he would buy a bat. सबसे बड़ा प्रॉब्लम और ये कई लोगों का रहेगा, आप लोग को लगता है कि आप अपना बेस्ट दे रहे हो, ठीक है, फोकस में. आपका बेस्ट इनफ नहीं है. आप समझ जाओ इतना ही. क्योंकि अपूर्वा आप तो मान रही थी कि आप पूरा फोकस कर रही थी. आप मानेंगे ना ये बात. मम्मी यू सेड यू वुड बाय मी अ बैट. हाँ, बहुत बढ़िया. अपूर्वा आप तो ये मानेंगे कि आप पूरा फोकस कर रही थी. मानेंगे ना. आप कहेंगे कि आप पूरा ध्यान नहीं दिया. आप मानेंगे ऐसा नहीं ना. आपने पूरा ध्यान दिया. उसके बावजूद आपका जो बेस्ट था वो इनफ नहीं था, क्योंकि हम लगातार वुड 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 बोले और अभी अपूर्वा उड बोली. कहाँ है बेस्ट भी इनफ नहीं है, बताइए. कैसे हुआ ऐसा? कैसे हुआ ऐसा? हम कल से अब तक वुड 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 कर रहे हैं और आप अभी अपूर्वा उड बोली हैं. योर बेस्ट इज नॉट इनफ. इट मीन्स Yes, sir. Pronunciation. मैं सिर्फ कहूंगा योर बेस्ट इज नॉट इनफ. इन विच वे? ब्रिंग मोर फोकस. जो मैं वो आप ध्यान से सुनो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. Yeah. दैट्स ऑल यू हैव टू डू. लेकिन अगर आप Okay. उसको रिफ्रेज करना चाहोगे तो गड़बड़ हो जाएगा. डोंट रिफ्रेज व्हाट आई टीच. Okay, sir. For rules, there is an evening class. Please join my Sunday class. I will teach you rules there. I promise I'll teach you rules there. लेकिन ये चीज जो कर रहे हो ना आप, ये आपको नुकसान करेगा. मैंने जो बोला था वो सेंटेंस था. और मोनी, रेनू, सॉरी मत दो मुझे प्लीज. मुझे एक प्रैक्टिस दो हर दिन. Okay? A few sentences. Do you want to continue your improvement? Yes, sir. Then Yes, sir. please write some sentences in the group. Not 100 sentences, 50 sentences. No, just 10, 5 sentences. जो पढ़े वो सीख लिखना है आपको. जिस चीज पे मैंने फोकस कराया वो चीज लिखिए. Okay? Okay, Bye, sir. everybody. Happy New Year, everyone. Bye, sir. Enjoy your New Year tonight. Okay? Bye bye. Good Same night. to you, sir. Bye, sir. Thank you. Thank you.